بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. دوستو بزرگو، دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. پہلی دفعہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. ہر مسلک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کی وضاحت کرے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے مسلک کے متعلق آگاہ کرے. میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک پر لگا دیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی سنت کیا ہے تو آپ نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینے کو کینے سے پاک رکھا جائے. اہل سنت والجماعت مسلک میں جہاں اور ہزاروں خوبیاں ہیں، ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا مسلک کینے سے پاک ہے. جب ہم ارد گرد نظر یاد کسی نہ کسی کینے پر ہے، کسی کو نبی کے صحابہ کے خلاف حسد ہے، کسی کو اہل بیت سے حسد ہے، کسی کو ائمہ مجتہدین سے حسد ہے، کسی کو حضرات محدثین سے حسد ہے، کسی کو اولیاء اللہ سے حسد ہے، کسی کو علماء امت سے حسد ہے. لیکن ایک مسلک اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس گندگی سے پاک رکھا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ علاقہ جسے پاک و ہند کہتے ہیں، یہاں دین اسلام لانے والے جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے. وہ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں. آپ تاریخ میں جس بزرگ کا بھی نام پڑھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے. میرے بزرگوں کا یہ کارنامہ ہے اس ملک میں. آپ کو جتنی اسلام کی یہاں رونق نظر آ رہی ہے یہ سارے میرے بزرگوں کی محنت ہے.
अहले सुन्नत वल जमात बुजुर्ग, एक बुजुर्ग आकर एक कुफरस्तान में बैठ गए लाहौर में, मिसाल के तौर पर हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पूरा इलाका कुफरस्तान था। उन्हें मसल के अहले सुन्नत वल जमात और मसल के हनफी से आगाह किया। जितने लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए वो भी सब हनफी थे। तो हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया वो ये था कि कुरान पाक सुना सुनाकर काफिरों को मुसलमान किया। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जब ये दोस्त आए तो इन्होंने जो कुछ किया, मेरी पिछली तकरीरों के बाद आते ही मुझे ये एक पंफलेट अब दिया गया है। इसका नाम है तारीफ अहले सुन्नत। तारीफ अहले सुन्नत दिलचस्प इल्मी मुकालमा एक मुहक्किक के कलम से। ये लिखता है कि ये मुहक्किक आलिम जो हैं जमात अहल हदीस पंजाब के बुलंद पाया आलिम और मुहक्किक हैं। इस रसाले को मुफ्त तकसीम करना ये हमारी जमात का फर्ज है। अब इसमें क्या है, मैंने भी अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ की थी और इसका मफहूम आपके सामने वाज़े किया था। लेकिन आप सुने, सफा 5 पर लिखते हैं, किस कदर अफसोस की बात है कि ईसाई और मिर्जाई जो काफिर हैं वो तो अपनी निस्बत अपने नबी की तरफ करके ईसाई और अहमदी कहलाएं, और आप मुसलमान होते हुए अपने नबी को छोड़कर अपनी निस्बत इमाम की तरफ करें और हनफी कहलाएं। क्या ईसाई और मिर्जाई आपसे अच्छे ना रहे जिन्होंने कम से कम निस्बत तो अपने नबी की तरफ की? क्या मैंने किसी पिछली तकरीर में, और जैसा हजरत ने फरमाया मुझसे पहले तो इस मौजू पर यहां तकरीर हुई नहीं, मैंने किसी गैर मुकल्लिद के बारे में ये कहा था कि उनसे मिर्जाई और ईसाई अच्छे हैं? लेकिन आप अंदाजा लगाएं, पहले एक झूठ घड़ा गया कि हमने अपनी निस्बत अल्लाह के नबी से तोड़ ली है। क्या वाकई आपको अपने नबी से कोई निस्बत नहीं? हमारा नाम है अहले सुन्नत वल जमात हनफी। जब हमने लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया तो सुन्नत किसकी होती है? हमने अपना ताल्लुक किनके साथ जोड़ लिया? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। जब हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, हमारा ताल्लुक आका नामदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। अब झूठ बोल करके तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ नहीं, और ये कहना कि तुमसे ईसाई और मिर्जाई अच्छे हैं, ये कुरान हदीस का हुक्म है? हमने जब अपने आप को अहले सुन्नत कहा तो हमारा ताल्लुक किनसे जुड़ गया? और जब वही ताल्लुक सहाबा किराम से जुड़ गया। जब हनफी कहा तो इज्तिहादी मसाइल में किताब व सुन्नत की ताबीर और तशरीह की जब हमें जरूरत पड़ेगी, उस वक्त हम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तहकीक पर अमल करेंगे। ये तीसरा दर्जा है। अल्लाह के नबी से भी ताल्लुक है, नबी के सहाबा से भी, और सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी। लेकिन ये झूठ बोल देना कि इनका ताल्लुक माज अल्लाह के नबी से नहीं, और फिर इस झूठ पर आगे ये सफा 6 पर लिखा है, ये लोग जो अपने आप को हनफी कहलाते हैं, 2 हदीसें लिखी हैं। लिखा है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बाप से निस्बत तोड़ता है वो कुफर करता है और उस पर जन्नत हराम है। यानी दूसरे मानों में मतलब यह है कि हनफी कहलाना और हरामजादा कहलाना ये हम माना बात है। क्या मैंने या किसी हमारे बुजुर्ग ने, बल्कि किसी तालिब इल्म ने भी कभी गैर मुकल्लिदीन के मुतल्लिक ये ज़बान इस्तेमाल की? ये बात तो
اگر ہمیں ملی تو غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ملی. اس نے لکھا کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اسے حرام زادہ بننے کا شوق ہے، وہ ولد الحرام ہے. اب میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ نام تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا اور جب ضرورت پڑے تو گالی مرزا غلام احمد قادیانی والی چرا کر لے آنا، کیا یہی اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے؟ پھر اس سے آگے اسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ کس بات کا جواب ہے. لکھا ہے سوشلزم ہو یا جمہوریت، حنفیت ہو یا شافیت، دیوبندیت ہو یا بریلویت، یہ سب اسلام میں اضافے ہیں جن کا اسلام بالکل متحمل نہیں. اسلام ایک خالص دودھ ہے جو ان ازموں کی پلید ملاوٹ کا روادار نہیں. آپ اندازہ لگائیں کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا یہی انداز اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا یا یہ انداز غلام احمد قادیانی کا انداز ہے؟ کیا واقعی حنفیت اور شافیت پلید ہے، حنبلیت پلید ہے، مالکیت پلید ہے؟ اگر حنبلیت پلید ہے تقلید والے تو وہاں جا کر جو رو رو کر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم یتیم ہیں، خدا کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دو، وہاں کے ائمہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو اب ان کو اپنے مدارس میں لے جاتے ہیں، ان سے تقریریں کرواتے ہیں، اور جب تک وہ یہاں رہے شوق یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بزرگ کوئی بات حنفیوں کے خلاف کہہ جائیں تاکہ ہم اشتہاروں کی شکل میں پھر حنفیوں کو پریشان کریں. چنانچہ اب عبداللہ بن زید صاحب جب تشریف لائے ابھی اسی دورے پر تو مامو کانجن میں احسان الہی ظہیر ترجمان تھا. مامو کانجن والوں نے سوچا کہ اب سنہری موقع ہے ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں، ان سوالوں کے جواب میں یہ کچھ نہ کچھ تو حنفیوں کو کہیں گے نا. چنانچہ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ جناب تقلید کے بارے میں آپ کا کیا مسلک ہے؟ انہوں نے فرمایا تقلید کے بغیر دین پر عمل کرنا مشکل ہے. نعرہ تکبیر، تقلید ضروری ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر تقلید پر استدلال فرمایا. جب وہاں منہ کی پڑی تو پھر پوچھنے لگے کہ جناب یہ رفع دین اور اونچی آواز سے آمین کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رفع دین کر کے اور اونچی آمین کہہ کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے، اور جو آمین آہستہ کہتا ہے اور رفع دین نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے. یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے ڈانٹا، فرمایا کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی ان فروئی مسائل پر لوگوں کو الجھانا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے ڈانٹا تو پھر ان کو تیسرے سوال کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگائیں سوشلزم اس کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، مرزائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، اور عیسائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر. یہ پروفیسر عبداللہ کا لکھا ہوا پمفلٹ ہے بہاولپوری کا. میں نے وہاں بہاولپور میں پروفیسر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم نفاق کو پسند نہیں کرتے، ہم تو اپنے مسلک کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا تمام مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک حکومت سے یہ بات نہیں منوا لی اس وقت تک آپ چین سے بیٹھے نہیں بیٹھے. اگر واقعی پروفیسر عبداللہ بہاولپوری اور غیر مقلدین
तमाम शाफियों को काफिर और हरामजादा समझते हैं, ईसाइयों और मिर्जाइयों से बदतर कहते हैं, जैसा इस रिसाले में उन्होंने लिखा है। तमाम मालकियों को, तमाम हम्बलियों को, तमाम हनफियों को इस वक्त इस्लामी ममालिक के जितने सदर हैं, जितने वजीर हैं, वो सब के सब मुकल्लिद हैं। एक मुल्क का भी कोई सदर या कोई वजीर गैर मुकल्लिद नहीं। नाराए तकबीर। तो मैंने कहा आइए आप ऐलान करें, जनरल साहब हनफी हैं या नहीं? आपके तमाम वज़रा और मुशीर जितने हैं मुल्क के, वो हनफी हैं या नहीं? सऊदी हुकूमत वाले सारे हम्बली हैं, मुकल्लिद हैं। तो जितने भी आपके इस्लामी मुल्क आज हैं, ये फतवा उन सब पर चस्पा हो रहा है। मैंने गुलाम अहमद कादियानी और उसकी उम्मत से यही सवाल किया था कि देखिए, सच और झूठ में फर्क ये होता है, सच्ची बात जो होती है वो हर वक्त कही जा सकती है। गुलाम अहमद कादियानी ने यह लिखा है कि जो मेरी किताबों को नहीं मानता वो हरामजादा है। मैंने कादियानियों से ये बात कही कि आइए उठे, हम डीसी साहब के पास चलते हैं, एसी साहब के पास चलते हैं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे बाद नबूवत का दावा करे, ये दो लफ्ज याद कर लो, कज़्ज़ाब है और दज्जाल है। आप किसी बड़े से बड़े आदमी से मेरे सामने ये दावा करवाएं, मैं उसी वक्त अपने नबी का ये फरमान उसे सुनाऊंगा कि कोई भी हो जो दावा नबूवत करता है वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्यों? सच्चे नबी की बात पर पहरा दिया जाता है। इसके बिलमुकाबिल कादियानियों से मैंने कहा कि आइए एसी साहब के पास चलें या डीसी साहब के पास, उनसे पूछें कि आप मिर्जा साहब को मानते हैं। अगर वो ना कहें कि मैं तो नहीं मानता, तो आप कहें कि मेरे नबी के कहने के मुताबिक माज़ अल्लाह आप जो हैं वो वल्दुल हराम है, आपकी वालदा ऐसी है, आपका वालिद ऐसा है। इन्ना लदा सारू खनाजीर फला व निशाहुम मिन दूने हिन्नल अक्लुब। लेकिन कोई कादियानी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी तरह मैं दावे से कहता हूं कि ये जो कहते हैं हमारी जमात का फर्ज है कि ये रिसाला मुफ्त शाया किया जाए और लोगों में तकसीम किया जाए। कितने आदमी गैर मुकल्लिदीन में से हैं? ये मौलवी अला बख्श साहब और कारी हफीज साहब आ रहे हैं 6 तारीख को। आप उन्हें कहें कि इस रिसाले के मुताबिक लिख दें कि जनरल साहब और इस्लामी मुल्कों के तमाम सरबराह हमारे इसी फतवे के मुस्तहक। अगर ये वाकई इनका मसलक है, इनको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? अगर ये उस वक्त अपना मसलक छुपाएं तो फिर खुदा के लिए इन रिसालों को फितने के लिए मुल्क में तकसीम न करें। कोई इल्मी बात उनके पास है, कोई दलील से बात करें। क्या वाकई सोशलिज्म और हनफियत को ये लिख कर देंगे कि जितने सरबराह इस्लाम खाना काबा के इमाम हम्बली हैं, उनमें और सोशलिस्ट में ये फर्क नहीं करते? क्या ख्याल है? इस रसाले में तो फर्क नहीं किया। अल्लामा इब्न हजर शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शाफी हैं जिनकी किताब बुलूगुल मराम पढ़कर ये अपने इज्तिहाद का दावा किया करते हैं। साहिब मिशकात शाफी हैं, उन्होंने 10 बड़ी बड़ी किताबों से निकालकर वो किताब लिखी। इतने बड़े हाफिजुल हदीस तो सारी उम्र मुकल्लिद रहे, और ये मिशकात का एक सफा पढ़ के गैर मुकल्लिद बन जाते कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें एक हदीस आ गई है बस। इमाम याह्या बिन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में ये जिक्र है, उनसे हजरत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हजरत आपने अपने हाथ से कितनी हदीसें नकल की हैं? तो वो फरमाते हैं मैंने 10 लाख हदीसें नकल की हैं। कितनी? 10 लाख। ये 10 लाख हदीसों का हाफिज
काना युफ्ती बेकौले अबी हनीफा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल पर फतवा देते थे। और यहां 10 लाख नहीं 10 हदीसों की तहकीक भी नहीं किसी को, और इस पर गरूर और तकब्बुर यह है कि कोई नजरों में जचता ही नहीं। तो बहरहाल मैंने जो कुछ अर्ज किया था, कहता है अगर ये सफा 21 है, अगर कोई मुंह करे बरेली को और किबला कहे काबे को, मुंह करे किधर और किबला कहे काबे को, रास्ता चले कूफे का और दावा करे मदीने का, तो उसे कौन सच्चा कहेगा? जबरदस्त दावा तो मिर्जाई भी किया करते हैं, यानी मिर्जाई के साथ मिलाकर हमें जरूर इसने जिक्र किया। क्या वाकई आप बैतुल काबा की बजाय बरेली की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? जी, कूफे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? तो आखिर ये बातें इश्तिआल अंगेज हैं या नहीं? जी, और सारा बुनियाद इस झूठ पर है सारी इस बात की कि माज अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने अपना ताल्लुक अल्लाह के नबी से तोड़ लिया। मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं, आप में कई बुजुर्ग होंगे जिन्हें खुदा ताला ने खाना काबा की हाजिरी की तौफीक दी और वो हज करके तशरीफ लाए। कोई साहब हैं तो हाथ खड़ा करें। माशा अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे। किस बात की? जो इन्होंने 16 दिन वहां किया है, अल्लाह ताला उसकी तौफीक किसी को ना दे। किया था ना? अब एक हाजी साहब वहां गए, हजरत असवद के पास खड़े हैं। एक मिस्री ने पूछा कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? इन्होंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी। उसके सवाल का जवाब पूरा हो गया। अब हाजी साहब कराची तशरीफ ले आए। यही सवाल यहां एक आदमी ने किया कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? हाजी साहब कहने लगे कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। इसलिए अब आप सूबे का नाम बताएं कि किस सूबे में आप रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में रहता हूं। जब पंजाब का नाम लिया तो पाकिस्तानी शरीयत तो खत्म हो गई ना। अब वो पाकिस्तान तो नहीं रहे, पाकिस्तान से ताल्लुक टूट गया। बिल्कुल नहीं टूटा। ये जो भी आप रुका लिखे उस पर नाम होना चाहिए। खैर ये तो मैं रख लेता हूं। जब पंजाबी कहा तो पाकिस्तानी तो नहीं ना रहा, पाकिस्तानी है ना भाई। आप वो फिर फर्जपारी पड़े हुए जो उनको आता है। अल्लाह उससे बचाए। उसके बाद हाजी साहब पंजाब में तशरीफ ले आए। ये आपका जिला कौन सा है? जिला मुल्तान। यहां आकर किसी ने पूछा हाजी साहब आप कहां रहते हैं? वो कहते मैं पंजाब में रहता हूं। उन्होंने कहा कि जी मेरा मकसद हाल नहीं हुआ, आप अब जिले का नाम बताएं। उन्होंने बता दिया कि मैं मुल्तान रहता हूं, जिला मुल्तान में। अब जब जिला मुल्तान का नाम लिया तो वो पाकिस्तानी तो पहले नहीं रहे थे, अब पंजाबी भी नहीं रहे। पंजाब से भी तल कट गया ना? नहीं कटा? अगर सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जाए, याद रखें जितना तारुफ के लिए छोटा आप नाम लेंगे उतना तारुफ ज्यादा होगा। मैं मौलाना से पूछता हूं कि जनाब का तारुफ क्या है, ये अपने वालिद साहब का नाम ले देते हैं तो आप सब समझ जाएंगे ना। और दूसरे साहब से पूछता हूं, ये उठकर कहते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। तो बात तो सही है ना, लेकिन जो आप मकसद चाहते थे तारुफ का वो पूरा हुआ नहीं। अब हाजी साहब ये कहते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो। मैंने हजरे असवद के पास खड़े होकर एक मिस्री के जवाब में कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूं।
वो कहता था कि मेरा मसला हल हो गया है। वही जवाब मैं यहां दे रहा हूं पंजाब में आकर, आप कहते हैं हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो अब याद रखें, जो शख्स अपने आप को तारुफ के लिए कहता है कि मैं जिला मुल्तान का हूं, वो पंजाबी भी शक है आपको, पाकिस्तानी भी। अगर कोई कहे कि उसने अपना ताल्लुक पाकिस्तान से काट लिया है या पंजाब से काट लिया है, तो ये झूठ है या सच है? बिल्कुल इसी तरह पादरी बरकत मसीह ने मुझे पूछा कि मौलवी साहब आप कौन हैं? मैंने कहा मुसलमान। मैंने नहीं कहा कि मैं हनफी हूं या अहले सुन्नत। एक काफिर ने सवाल किया, पंडित शरदानंद पूछे तो हम क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं। उसके बाद एक शिया दोस्त ने पूछ लिया कि मौलवी साहब आप कौन हैं? अब मैं यही कहूं कि मैं मुसलमान हूं, तो उसका जो बात है वो सवाल हल नहीं हुआ। वो कहता है जी मुसलमान तो ये सारे बैठे हैं। अब मैंने कह दिया कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं। तो जब मैंने अहले सुन्नत वल जमात कहा, मुसलमान रहा या नहीं रहा? ना, आपका क्या ख्याल है? वो ताल्लुक कट तो नहीं गया जी? उसके बाद एक शाफी दोस्त ने या हंबली दोस्त ने मुझे पूछा कि मौलवी साहब आप कौन हैं? मैंने कहा मैं हनफी हूं। तो हनफी कहने से मैं अहले सुन्नत रह गया या नहीं? मुसलमान रहा या ना रहा जी? तो आप अंदाजा लगाएं, हमारा मसलक तो ये है जो मैंने वाजे कर दिया। अब कोई हमें तोहमत लगाए, अच्छा आप में से वो आदमी हाथ खड़ा करें जो अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वो हाथ खड़ा करें जो नबी के उम्मती तो हैं पर अल्लाह के बंदे नहीं। दो निस्बत नहीं होने देनी मैंने जी। इन्होंने बड़ी सख्त बात की है। एक मिसाल याद आ गई, मैं कह ही दूं। अमृतसर में जलसा था, उसमें अल्लामा सईद अनवर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मसला किरात खल्फल इमाम पर यार लोगों ने छेड़ा हुआ था। तो मदरसे वालों ने कहा कि हजरत आप इस मसले पर बयान फरमाएं। मौलाना बयान फरमा रहे थे तो एक शख्स गैर मुकल्लिद ने लिख कर भेजा, जैसा हजरत फरमा रहे थे कि ना अरबी पढ़नी है ना उर्दू है। उन्होंने लिखा शाह साहब को चिट लिख कर भेजी कि आप कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? करें इस हदीस का तर्जमा, इकरा बिहाफी नफ्सिक रवाह मुस्लिम। आप अपने दिल में फातिहा पढ़ें, रिवायत किया इसको किसी मुसलमान ने। ये रवाह मुस्लिम का तर्जमा किया उस नैब मुज्तहिद ने, जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की गलतियां छांटने वाला है, जो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिदती कहता है। उसका इल्म यह है कि रवाह मुस्लिम का तर्जमा कर रहा है, रिवायत किया इसको किसी मुसलमान ने। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो रुका मौली सनाउल्लाह साहब को दिया, वो स्टेज पर बैठे थे। उन्होंने सिर्फ ये फरमाया कि मौलाना आप नैब मुज्तहिदीन की जो खेप तैयार फरमा रहे हैं, उनके इल्मी बरकत जरा मुलाजा फरमा लें। अब मौली सनाउल्लाह साहब को बड़ा गुस्सा आया, उठे, कहने लगे कि भाई देखो ये इल्मी बातें हैं, मैं बैठा हूं, मैं भी बात कर सकता हूं, खबरदार हमारी जमात का कोई आदमी रुका ना निकले। अगला दिन हुआ तो तकरीर थी मौलाना सैयद मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। दारुल देवबंद के मुनाजिर थे वो, उन्होंने भी तकरीर फरमाई, जो भी उनका मौजू था। तो मौलाना सनाउल्लाह साहब उन्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ चले। वो भी मुनाजिर थे, ये भी मुनाजिर थे, कुछ दोस्ती तो होती है ना मुनाजरों में। हाँ, मौली सनाउल्लाह साहब गैर मुकल्लिद थे। जाते जाते अब देखिए, मैं बताने ये लगा हूं कि छोटे से लेकर बड़े तक उनको कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं
रास्ते में वो बाजार हुसन आ गया तो मौलवी सनाउल्लाह साहब कहते हैं मौला मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, वो गैर मुकल्लद मौलवी साहब, कि मौलाना ये सब हनफने बैठी हैं, ये सब, और ये बात आज तक इनके अकीदे में है। इसी प्रोफेसर की एक किताब है तकलीद के खौफनाक नताइज, रिसाला इतना, उसमें लिखा है हर कंजरी या शिया होती है या हनफी। उसके सफा 22 पर लिखता है। तो इसी बात को सनाउल्लाह ने वहां कह दिया। मौला सैयद मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना खुदा की कसम खाकर कहता हूं कभी इधर आना जाना नहीं हुआ, ना पता इनका मसलक क्या है। आप तो तजर्बाकार मालूम होते हैं। लेकिन चूंकि आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं आपका दिल तोड़ना भी नहीं चाहता। चलें उससे पूछ लेते हैं, अगर तो वो एक ही बनकर रहती है तो मुकल्लिद है।